Welcome friends. The UPSC has come out with notification for investigator grade 1 for Labor Bureau Chandigarh. So this Labor Bureau is an attached office with Ministry of Labor and Employment, and this exam will be conducted by the UPSC. The last day of form filling is 10th of November. The last day is 10th of November 2022. So today what we'll discuss about this notification. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है. देन विल डिस्कस कि एग्जाम का पैटर्न क्या है या पिछली बार पेपर कब हुआ था, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, सिलेबस क्या है, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ फॉर दिस एग्जाम, एंड फाइनली व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर दिस एग्जाम ऑफ इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 फॉर लेबर ब्यूरो. Okay, so guys, before I start, there are two things which I want to share with you. Number one, if you have any doubt, if you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are welcome. So what you can do, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Get connected and do let me know. Second thing, if you want to understand how you guys can prepare with the human parators for this exam, for that what you can do, you can go to the website of human parators, and once you are on the home page only there is a link which is investigator grade 1 labor bureau. Click on that link. This will take you to another page, and on this page you will find everything about this exam and what we plan to do for this exam. So guys, शुरू करते हैं. So investigator grade 1 exam. So how many vacancies are there? So there are 12 vacancies. Okay. And again, last date is 10th of November 2022. It is group B. It is group B. It is group B, but gazetted, group B gazetted, level 7 non-ministerial post. Group B level 7, but it's gazetted post with under Ministry of Labor and Employment, of course, with Labor Bureau office, which is in Chandigarh. Okay. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन एलिजिबल है. सो एलिजिबिलिटी इज ऑन टू एस्पेक्ट्स. नंबर वन, एलिजिबिलिटी ऑन एज, and second thing is eligibility on your qualification. If we discuss about age, then the upper age limit is 30 years. 30 years, but 30 years when? By 10th of November 2022. तो अगर आपकी एज 10th नवंबर 2022 को 30 साल या 30 साल से नीचे है, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है. Of course, there is also some relaxation for some categories, for ex-servicemen, then those guys who are working with the central government, and also person with disabilities. So these three categories have some relaxation. So if you want to understand कि किस category में कितना relaxation है, for that you have to go to the notification which is available on the website of UPSC. Let me also show you कि notification हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं if you guys cannot find it. So go to website of UPSC, then go to recruitment section, then advertisement. Advertisement के अंदर go to advertisement number 20th, advertisement number 20. ठीक है, go on this page and vacancy 1 2 3 4. So go to serial number 4, this vacancy, and this is where you'll find details about this vacancy. So guys, coming back, so this is about age limit. Then let us discuss the second part, which is your educational qualification. Your educational qualification. So guys, what the UPSC has asked that you should be having a postgraduate degree in which subjects? Either in economics or in applied economics. So this is postgraduate 2-year degree, guys, mind it. Then it might be in business economics, and fourth one is econometrics.
So if you are having one of these four, any of these four qualifications, then yes, you are eligible. But then there is, if if you even have a postgraduate degree in maybe maths or stats or maybe commerce. If you are having postgraduate degree in these subjects, then also you are eligible, provided you should have at least one subject of economics in your course, at least one subject in any semester, जो कि guys होगा ही होगा. If anybody is doing PG in stats or PG in commerce या PG in maths, definitely you will have at least one subject related to economics in your course. So these guys are also available. Postgraduate degree in math, stats, and commerce. And postgraduate degree in eco, applied eco, business eco, and इकोनोमेट्रिक्स. अब गाइज सवाल ये आता है कि कब तक, हु आर एलिजिबल. सो इफ देर इज समबडी हु इज इन फाइनल ईयर, क्या वो एलिजिबल है? नहीं गाइज, वो एलिजिबल नहीं है. सो द कट ऑफ क्राइटेरिया इज कि तुम लोग कर रहे हो 10th of November 2022 तक, 10th of November 2022 तक तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए. वट एवर डिग्री शुड बी ओवर. नॉट ओनली दैट, you should also have your results ready. मतलब so cut off criteria is कि 10 नवंबर 2022 को आप लोगों के पास आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए. If you don't have a degree, it's fine, but you should definitely, your result should be out and you should have this marksheet. अगर 10 नवंबर 2022 को आपके हाथ में मार्कशीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो. सो दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर ऑल यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. सो ऑफ कोर्स फाइनल ईयर वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं, और अगर किसी ने एग्जाम दे दिया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी एलिजिबल नहीं है. यू शुड हैव योर मार्कशीट रेडी, बिकॉज दैट इज something which you will need to upload on the portal when you will be applying for this job. अब कुछ अलग अलग कोर्सेज भी हैं, जैसे अगर किसी ने, if somebody has done PG in maybe management he has done, but he has got one eco subjects and all that. So now all those are gray areas. Sometimes UPSC might consider them, sometimes UPSC might not consider them. So what you can do, you can share whatever qualification you have on in the comments below, and we'll see whatever best we know and we'll try to advise you based on whatever understanding we have about UPSC exams. But clearly ये जो आपके सामने ब्लू कलर में है, ये यूपीएससी ने लिखा है. इसके अलावा एवरीथिंग इज इन ग्रे एरिया. अनदर थिंग गाइज, लेट्स मूव ऑन नाउ कि इस वाले एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है. सो इससे पहले ये वाला पेपर कब हुआ था? इससे पहले दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 2010 एंड 11. 2010 और 11 में वाला पेपर हुआ था. सो इन दैट एग्जाम देयर वर 13 वैकेंसीज, और इन 13 वैकेंसीज के लिए 1124 लोगों ने अप्लाई किया था. 1124 लोगों ने अप्लाई किया था फॉर दीज 13 वैकेंसीज. सो उसके बाद अभी अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है इन द ईयर 2022-23. ठीक है. और अब की बार कितनी वैकेंसीज हैं? अब की बार 12 वैकेंसी हैं. तो अब की बार कितने लोग अप्लाई करेंगे गाइज? बिल्कुल ऐसा मत समझना कि अब की बार भी 1000 के आसपास करेंगे. अवर बेस्ट गेस इज कम से कम 5 से 6,000 लोग, कम से कम 5 से 6,000 लोग अप्लाई करेंगे. बिकॉज 2-3 रीजंस. नंबर 1 कि धीरे धीरे अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड अबाउट यूपीएससी आरटी एग्जाम्स. आज से 4-5 साल पहले तक लोगों को यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम का पता भी नहीं चलता था और एग्जाम आके निकल जाता था. बट नाउ सिनेरियो इज नॉट सेम. पीपल आर मोर अवेयर. Definitely the competition level, the awareness level, everything has gone up. Therefore, the competition will definitely be much higher this time. Second thing, guys, some of you might be thinking that शायद रिटर्न होगा ही नहीं, सीधा इंटरव्यू होगा. वो सब चीजें भी लोग डिस्कस करेंगे अभी यूट्यूब पे यहाँ वहाँ. बट लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन वी आर सेइंग 100% इस वाले उसके लिए एग्जाम होगा ही होगा. 100% इस वाले पोस्ट के लिए एग्जाम हो गए. और ये 5 से 6 हजार इज द मिनिमम नंबर विच आई एम टेलिंग यू. दिस कैन आल्सो बी मच मोर देन दैट, बट दिस अ मिनिमम नंबर विच आई कैन टेल यू. सो 2010 और 11 में एग्जाम हुआ है, तो उस टाइम जो यूपीएससी के एग्जाम होते थे उसमें
थोड़ा पैटर्न अलग था यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम, और अब वो चीजें काफी हद तक बदल चुकी है। जैसे कि उस टाइम रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज 50-50 होता था, अब लेकिन ये बदल के 75/20 75-25 हो चुका है। पहले कई बार रिटर्न के जो सवाल हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द ऑब्जेक्टिव पेपर पहले कई बार 80 भी आते थे, फिर कई बार 100 भी आते थे। अब हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120 ओनली, और आपके में भी इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि 120 ही सवाल आएंगे। अब गाइज समबडी माइट से दैट कि आप लोग बोल रहे हो कि एग्जाम होगा लेकिन सिलेबस तो दिया ही नहीं है, तो एग्जाम कैसे होगा? सो जो यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस बाद में आता है। सो देयर इज अनदर नोटिफिकेशन विच विल कम आउट, ठीक है, और दैट नोटिफिकेशन विल हैव डिटेल्ड सिलेबस की इस वाले पेपर के लिए क्या करना है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो वो वाला नोटिफिकेशन है वो एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ही आता है, और फिर टाइम इतना कम बचेगा कि आप लोग अगर उस टाइम पे डिपेंड करोगे टू कंप्लीट द सिलेबस, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। तो अभी उसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? सो आई कम टू द सिलेबस पार्ट। एक दो चीजें और है जो डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में होंगी होंगी, ठीक है। नाउ दैट इट इज बीइंग कंडक्टेड इन 2022-23, डेफिनेटली आपके 120 सवाल होंगे, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, डेफिनेटली यू विल हैव 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये भी होगा ही होगा, ठीक है। अब गाइस जो 2010 और जो 11 वाला पेपर है, ठीक है, जब हुआ था, तो अब अगर हमें अपना तैयारी शुरू करना है, सो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, सिलेबस तो बाद में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने काफी रिसर्च किया बेस्ड ऑन व्हाट, कि जो 2010-11 में जो लोग सिलेक्ट हुए थे, दीज 13 गाइज, सो वी स्पोक टू सम ऑफ देम, ठीक है, हमने उनसे बात किया है कि उस बार उस वाले पेपर में क्या चीजें आया था, ठीक है। सो पहली बात तो डेफिनेटली सिलेबस में अब की बार चेंज होगा, क्योंकि 10-11 साल हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो 2010-11 में जो सिलेबस था वही 2022-23 में होगा। लेकिन बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विच वी हैड दोज गाइज हु आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, कुछ टॉपिक्स हैं अबाउट विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एंड यू गाइज कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज टॉपिक्स। और हम भी उन्हीं के लिए हम अपना कोचिंग हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। सो वो वाले टॉपिक कौन कौन से हैं कि जो एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहला टॉपिक है जो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है वो है जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सो दिस इज नथिंग बट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, 100% ये आएगा ही आएगा। दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज। सेकेंड थिंग, हमें जो लगता है कि जो करंट अफेयर्स है या करंट इवेंट्स है वो भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। नंबर 3, आपके एग्जाम में बेसिक स्टैट्स भी आएगा। बेसिक स्टैट्स या स्टैटिक्स जो आएगा वो डेफिनेटली आपको उसका भी तैयारी करना है। नंबर 4, कंप्यूटर नॉलेज, डेफिनेटली इट विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, जो कि हम डेफिनेटली श्योर हैं, वो है तुम्हारी डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। नॉट फिफ्थ, एक्चुअली वन मोर, सिक्स्थ वन, सो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी आएगा। सो गाइज ये 6 टॉपिक्स वो हैं जो कि 100% आपके सिलेबस में आएंगे ही आएंगे। दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज। वी आर 100% श्योर अबाउट दीज 6 टॉपिक्स। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद आ भी सकते हैं और वो नहीं भी आ सकते हैं। सो वन इज योर जनरल इंग्लिश, सेकेंड वन इज योर पॉलिटी, या यू कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The third one is something about labor ecosystem. So either it can be labor welfare या industrial relations या labor laws. So labor welfare या IR या labor laws, ये भी शायद आ सकता है, ठीक है। So अभी आप लोग कर क्या सकते हो? Let's make a plan. आप लोग क्या कर सकते हो? So guys, our suggestion is, our advice is that
कि जो ये 6 टॉपिक हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, कौन से 6? ये वाले 6, ठीक है। तो इनका तैयारी तो आप अच्छे से भी कर लीजिए, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। फॉर दीज 6 टॉपिक्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और हम भी अपना कोर्स इन्हीं के बेस पे अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस आएगा एंड दैट विल टेक सम टाइम, ठीक है। जब सिलेबस आएगा तो कुछ एडिशनल टॉपिक शायद आ भी सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, पॉलिटी है, या लेबर लॉज, या आईआर, या लेबर वेलफेयर, ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए सिलेबस आ जाने के बाद अगर वो सिलेबस में आते हैं, देन मे बी वी कैन प्रिपेयर फॉर दीज एडिशनल टॉपिक्स जो बचेंगे। बट लेट अस मेक श्योर, क्योंकि सिलेबस आने के बाद तो काफी कम टाइम बचेगा, 1-2 महीने के आसपास ही बचेगा, ठीक है। तब तक हम जो ये 6 हैं जो हम श्योर हैं, इनको हम बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं। और जो बाकी 3 हमारे टॉपिक्स बचेंगे उनके लिए मे बी उसके बाद जब आएगा देन वी कैन डू इट। सो दिस इज गाइज बेस्ट विच यू कैन डू राइट नाउ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च। जो हमने पुराने लोगों से बात किया है, काफी लोगों से जो पुराना हमने पैटर्न है, जिस तरह के सवाल आए थे उस सब को हमने एनालाइज किया, उस सब के बेस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन अनदर थिंग कि हमारे पास और कोई ऑप्शन इसके अलावा है भी नहीं। दिस इज द बेस्ट प्लान व्हिच कैन बी क्रिएटेड। व्हाई? बिकॉज अदर ऑप्शन इज अब तैयारी मत करो और जब वो सिलेबस आएगा तभी करो। लेकिन तब अगर करोगे तो तब ये 8-9 टॉपिक जो होंगे सारे हम इतने कम टाइम में कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो विद दैट नोट आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लान विच विद विच वी कैन गो। इसके बारे में इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, डेफिनेटली काफी लोगों को एलिजिबिलिटी का डाउट होगा, बिकॉज दीज डेज पीपल हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्रीज इन द कंट्री। किसका कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। कोई बोलेगा मेरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो मैं क्या एलिजिबल हूँ, ऐसे सवाल भी आएंगे बड़े सारे। सो कीप शेयरिंग ऑन द इन द कमेंट सेक्शन एंड विल डू आवर बेस्ट कि हम उसके बारे में जो जानते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो रीच आउट टू अस। हाउ? there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. Last thing, if you want to understand how you guys can prepare with human parators, बड़ा ही आसान है। human parators की वेबसाइट पे जाओ, वहां you'll find the link on investigator grade 1. Click on that, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए and you'll understand. So guys, that's all and all the best.